Good morning, everyone. This is the sum in front of your screen. We'll just start now with, let us start. ABC Limited came up with the public issue of 3 lakh equity shares of rupees 10 each at rupees 15 per share. So ABC Limited had 3 lakh equity shares of 10 rupees, and they will sell at 15. Issue price is 15, means it's a 5 rupees premium. P, Q and R took undertaking of the issue in the ratio 3:2:1. So there are 3 underwriters who are being appointed for this issue, to sell this issue. There are 3 underwriters, and they will have to sell the shares on the following ratio: 3:2:1. 3 plus 2 plus 1 is 6. That means 3/6, 2/6, and 1/6, with the provisions of firm underwriting of 20,000. Of firm underwriting is given. Firm underwriting means these underwriters, they have to purchase 20,000 for P, 14,000 for Q, and 10,000 for R, respectively, irrespective of the number of shares sold to the public, over subscription, under subscription. In any case, firm underwriting shares has to be purchased by the underwriters: 20,000, 14,000, 10,000. Applications were received for 2,40,000 shares. So application, then these are excluding firm underwriting. So applications कितना मिला? Applications मिला है 2,40,000 shares. The marked applications from public were received as under: 60,000 for P, Q के लिए 50,000. मतलब 60,000 applications had the stamp of P, marked application है, and 50,000 shares had the mark of Q, and R had the mark stamp of on 60,000 shares. Compute the liability of each underwriter as regards the number of shares to be taken up, assuming that the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter. Benefit मतलब ये पहला मेथड है जहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट नहीं दिया रहता. सी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन 2 मेथड्स. एक जहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, तो वो सिचुएशन में हम फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं. और लास्ट में हम पूरा होने के बाद एंडिंग में लास्ट स्टेप है कि हम क्या करते हैं, फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करते हैं एट द एंड. सो दैट वी विल डू, जैसे नॉर्मल हम पहले मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करेंगे, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस करेंगे, फिर उसके बाद हम एंडिंग में हम जो फर्म अंडरराइटिंग है वो ऐड करेंगे. सो लेट अस फाइंड द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. लायबिलिटी of underwriters. So let us insert the column particular basis PQR. Do we want the total column? So I have also added the total column, which is optional. Particulars basis P, Q, R and total. So सबसे पहले we will write gross liability. This will be our first step. And what is the ratio given?
3:2:1, तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है 3:2:1 इज द रेशो एंड देयर आर हाउ मेनी शेयर्स दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. पब्लिक को एबीसी लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू ऑफ 3 लाख शेयर्स. सो 3 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जिसको हमें 3:2:1 रेशो में डिवाइड करना है. 3/6, 2/6, 1/6. ये कैसे मिला? 3 + 2 + 1 is 6. So 3/6, 2/6, 1/6 करो. 3 लाख को डिवाइड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? पी के लिए मिलता है, पी का ग्रॉस लाइबिलिटी है टू सेल 1,50,000 शेयर्स. क्यू का लाइबिलिटी है टू सेल 1 लाख शेयर्स एंड आर का लाइबिलिटी है टू शेयर्स टू सेल 50,000 शेयर्स. इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करना पड़ता है एंड मार्क्ड एप्लीकेशंस आर गिवन कि कितना है. इट इज गिवन. सो हाउ मच इट इज? मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? पी का 60,000 ब्रैकेट में बता देते हैं. ये लेस करना है कि 1,50,000 ग्रॉस लाइबिलिटी में पी के नाम का कितना स्टैम्प? 60,000. क्यू के नाम का 50,000 एंड आर के नाम का 60,000. उसको सेल करना था सिर्फ 50,000. तो ये सबको आर किया. 60 + 50 + 60, हाउ मच वी आर गेटिंग? 1,70,000. So now we get the balance. Now we get the balance. So balance कितना मिला? कितना है? This is 90,000. 1,50,000 minus 60. 1 lakh minus 50,000. It is 50,000. This is minus 10,000. 50,000 minus 60,000. So यहाँ कितना मिलेगा? 3 lakh minus 1,70,000. I will get 1,30,000. ये तीनों को ऐड करेंगे. 90 + 50, 1,40,000 minus 10, 1,30,000. तो ये बैलेंस में से लेस करना है. अभी मार्क्ड एप्लीकेशंस के बाद लेस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे मिलेगा? टोटल एप्लीकेशंस माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस विल बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन. एंड फॉर्म अंडर राइटिंग को माइनस करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि total applications do not include the form underwriting. Applications were received for 2,40,000 shares excluding firm underwriting. अगर firm underwriting भी included होता तो total application से unmarked application मिलने के लिए हमें marked applications और firm underwriting applications दोनों minus करना पड़ता. But because they have told कि application is excluding firm underwriting shares, तो हम सिर्फ टोटल एप्लीकेशंस में मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आ जाएगा. तो 2,40,000 minus 1,70,000. I will get the unmarked applications. So how much is the unmarked applications? Unmarked applications. So here what we will do to unmarked application is how much? Unmarked application is how much are you getting? Minus karo. Minus is 2,40,000 minus 1,70,000 is how much? 70,000.
या इट इज 70,000 ना, 2,40,000 माइनस 1,70,000 70,000। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज देखो, जब हम बेनिफिट नहीं देते फॉर्म अंडर राइटिंग का, जब हम फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट नहीं देंगे इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को, तब हम फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं। तभी हम फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट करते हैं, व्हेन द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। इन दिस सिचुएशन द फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो हमें इसे अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इसके साथ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन मिलने के लिए हम फॉर्म अभी जो हमें अमाउंट आया है 2,40,000, इसमें हम क्या करेंगे, एक और चीज ऐड करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, इन द ब्रैकेट वी हैव टू ऐड द फॉर्म अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स को हमें ऐड करना है। बिकॉज व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन, फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट जब इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को नहीं मिलता, तब हम क्या करते हैं, फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं। सो हाउ मच इज फॉर्म अंडर राइटिंग, इट इज 20,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000, ये सबको ऐड करो, 44,000 होता है। तो हमने इसको यहाँ पे 44,000 भी ऐड किया, तो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितना हो जाएगा, 70 प्लस 44 विच इज इक्वल टू 1,14,000, which is equal to 1,14,000. When the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters, तब हम फॉर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं। तो ये 70,000 को छोड़ के फॉर्म अंडरराइटिंग को भी हमें अनमार्क्ड ट्रीट करना है। तो टोटल ये कितना हो जाता है अनमार्क्ड, ये हो जाता है 1,14,000। सभी इसको कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इन द रेशो 3:2:1। हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को ग्रॉस लाइबिलिटी में कुछ नहीं बोला है, तो कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। सो 1,14,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 57,000। 1,14,000 into 3/6, 1,14,000, 1,14,000 into 2/6 कितना आ रहा है, 38,000। एंड फाइनली 114,000 into 1/6 which is equal to 19,000। तो अभी हमें क्या मिलेगा, अभी हमें दोबारा बैलेंस मिलेगा। सो कितना आ रहा है, 90 में से 57 माइनस करो, यू विल गेट 33,000, एंड 50 में से 38 माइनस करो, यू विल गेट 12,000। 10 भी माइनस में, 19 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -29,000। अब ये पूरा जब हम एडजस्ट करेंगे, 1,30,000 माइनस 1,14,000, वी विल गेट 16,000। अभी एक क्रेडिट है, मतलब एक ब्रैकेट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लेस क्रेडिट एडजस्टेड, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा। सो क्रेडिट एडजस्ट कौन से रेशो में करेंगे,
यहाँ पे किसका नेगेटिव है, आर का, तो उसका छोड़ के बाकी लोगों को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। कौन से अमाउंट को, कौन से अमाउंट को, 29,000 को। जो नेगेटिव फिगर है उसको हम लोग, दो जो उनके पास पॉजिटिव है PNQ, उनका जो रेशियो है ग्रॉस लाइबिलिटी का, उसमें 29,000 को एडजस्ट करेंगे। तो 29,000 इंटू 3/5, 29,000 इंटू 2/5, हाउ मच वी आ गेटिंग, 17,400 and 11,600. So adjust करो क्रेडिट को, so how much you will get, तब हमें बैलेंस कितना मिलेगा, तभी हमें मिलेगा अमाउंट कितना मिलेगा। इसको हम नेट लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फाइनली फिर क्या करेंगे, फाइनली हम पहले करो इसका कितना आ रहा है, 33,000 माइनस 17,400, वी गेट 15,600 एंड 12,000 माइनस 11,600 हमें 400 मिलेगा। ये ज़ीरो मिलेगा, इसका लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ मिलेगा 16,000। इसके बाद फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करते, बिकॉज वो तो कंपल्सरी है। फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना, एंडिंग में मैंने क्या बोला था, व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन टू द इंडिविजुअल अंडर राइटर, हम क्या करते हैं, फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड, सॉरी, फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन में ट्रीट करते हैं। व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट जब इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को नहीं मिलता, तो हम फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं और लास्ट में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करते हैं। मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या है कि आप जितना शेयर्स आपका ग्रॉस लाइबिलिटी है उतना आप पब्लिक को सेल करते भी हो तो भी आपको ये शेयर्स खरीदना पड़ेगा। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, 20,000, 14,000 and 10,000। तो दिस इज हाउ मच, टोटल कितना है, 44,000। तो हमारा फाइनल जो लाइबिलिटी है, इसको अब ऊपर नेट लाइबिलिटी बोल दिया, तो इसको टोटल लाइबिलिटी बोलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ऐड करो, 35,600, 14,400, 10,000, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 + 44 विच इज इक्वल टू 60,000। सी व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, मैंने ये मेथड 1 पहले ही लिखा है, तो हमें क्या करना है, अनफॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है और लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना एट द एंड। फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना एट द एंड। हमने दोनों किया, फर्म अंडर राइटिंग को हमने क्या किया, अनमार्क्ड ट्रीट किया, तो अनमार्क्ड में ऐड किया क्योंकि वो इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन, तो अलग से ऐड किया। फिर उसके बाद लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड किया। जब बेनिफिट मिलता है, व्हेन द बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स, हम क्या करते हैं, इसको अनमार्क, फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड नहीं ट्रीट करते, मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं। पहले हम लेस करते हैं फर्म अंडर राइटिंग को, फिर लास्ट में ऐड करते हैं, करेक्ट। तो विद दिस सम इज, with this sum is done. So now let us move to the next sum. A, B and C underwrote 60% of an issue of 1 lakh preference shares of ₹10 each in the ratio of 3:2:1। तो यहाँ पे जो अंडर राइटर्स अपॉइंट हुए हैं, दे आर ओनली फॉर 60% ऑफ द इशू।
तो 40% इशू किसके ऊपर, उसको सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. Here A, B and C have to they have been got the responsibility to underwrite 60% of an issue of 1 lakh preference shares of rupees 10 each. तो इनको से 60% इशू पर सेल करना है. 1 लाख का 60% इज 60,000. रिमेनिंग 1 लाख का जो 40% है दैट इज 40,000, उसके लिए अंडर राइटर विल बी अज्यूम्ड टू बी द कंपनी. तो यहाँ पे 60% के लिए 3 अंडर राइटर. तो रिमेनिंग 40% के लिए हु विल बी ट्रीटेड एज द अंडर राइटर, इट विल बी द कंपनी. द फर्म एंड मार्क्ड एप्लीकेशंस ऑफ द अंडर राइटर्स वेर एज फॉलोज. 10,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है, बी का 8,000, सी का 6,000 और मार्क्ड एप्लीकेशन है 22,000, 18,000 एंड 10,000. In all, applications for 80,000 shares were received. Prepare the statement showing the liability of each underwriter. Firm underwriting applications are to be treated as unmarked applications. Firm underwriting को क्या treat करना है? Firm underwriting को हमें unmarked treat करना है. Okay. So let us start this sum. Liability of underwriters जब हम जब हम फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं तो हम लास्ट में ऐड करते हैं फर्म अंडर राइटिंग को. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो कितना कॉलम चाहिए. पर्टिकुलर, बेसिस, ए बी सी, कंपनी को 40% मिल रहा है एंड टोटल. So particulars, basis, then we have A, B, C, then we have company and total. सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी आता है. सबसे पहले we will write gross liability. Gross liability is given actually कौन से रेशियो में करना है, 3:2:1 और सिर्फ 60%. टोटल 1 लाख शेयर्स है जिसमें 40,000 दैट इज 1 लाख का 40% जो है वो अंडर कंपनी इज द अंडर राइटर, अज्यूम्ड अंडर राइटर, बिकॉज एबीसी को 1 लाख का सिर्फ 60% के लिए अपॉइंट किया है. 1 लाख का 60% सेल करने के लिए एबीसी को अपॉइंट किया है. तो 60,000 का 3:2:1 में डिवाइड करो. 60 यहाँ पे जो अंडर राइटर्स है, underwriters are appointed for 60% issue. So 60% of 1 lakh, 1 lakh का 60% that is 60,000 हमें किसको डिवाइड करना है, 3/6. 3 + 2 + 1 is 6. तो कितना आ रहा है, 3/6 करेंगे तो कितना आ रहा है, 30,000. फिर 60,000 इंटू 2/6 ये कितना आ रहा है, 20,000 एंड 60,000 इंटू 1/6 तो ये कितना आ रहा है, 10,000. तो ऐसे हमने
डिवाइड किया, तीनों अंडर राइटर्स को ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो ऐसे दे हैव टू सेल 60,000 शेयर्स। उनका रेशो दिया है, 3 अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया। तो इसमें से अभी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करना है, मार्क्ड एप्लीकेशंस। सो मार्क्ड एप्लीकेशंस में ये तो गिवन है ना, क्या है मार्क्ड एप्लीकेशन, दैट इज गिवन। सो मार्क्ड एप्लीकेशन इज 22,000 ए का, बी का 18,000 एंड सी का 10,000। सी का इज 10,000। सो यहाँ पे कंपनी का कुछ नहीं दिया है, तो जो अनमार्क्ड है वो कंपनी में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स हाउ मच, ऐड करो 22 प्लस 18 प्लस 10, 22 प्लस 18 30, सॉरी 22 प्लस 18 इज 40 प्लस 10 इज 50। सो दिस इज कमिंग टू 50,000। सो हमारे पास बैलेंस कितना आया, बैलेंस कितना आया, बैलेंस इज here 8,000 and here 2,000, here nil and here पूरा 40,000. So total will be how much, 50,000, 1 lakh minus 50। अभी इसमें से लेस करना पड़ेगा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, तो यहाँ पे लेट अस सी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। Unmarked applications is equal to total applications minus marked applications। Total application minus marked applications। सो यहाँ पे कितना होगा, टोटल एप्लीकेशन इज 80,000। इन ऑल एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिला है, 80,000। इसमें से माइनस करते मार्क्ड एप्लीकेशन विच इज हाउ मच, 22 प्लस 18 प्लस 10 इज 50,000। सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया 30,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया 30,000। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में किधर भी नहीं बोला है दैट फॉर्म अंडर राइटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे नहीं बोला गया है। बट इसके पहले वाले सम में इट वॉज टोल्ड दैट जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ 2,40,000 का, इट इज एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। तो ये सब में ऐसे नहीं बोला है कि जो 80,000 आया है उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है करके। वी अज्यूम इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड हमने अज्यूम कर लिया बिकॉज कुछ भी नहीं दिया है। सो टोटल एप्लीकेशन में जिसमें फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंक्लूडेड है उसमें हमने मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन बचता है 30,000। तो अनमार्क्ड में हमने फॉर्म अंडर राइटिंग को भी इंक्लूड किया और उसको क्या ट्रीट करने बोला है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करने बोला है। तो वो कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि
This unmarked applications are those applications which do not bear the stamp of any underwriter. तो उसका बेनिफिट हमने कंपनी को दे दिया. देखो मार्क्ड एप्लीकेशन में कंपनी को कितना डायरेक्ट एप्लीकेशंस मिला, उनके स्टैम्प के साथ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हमें उसका बेनिफिट हमें कंपनी को देना पड़ेगा. तो इसका यहाँ पे 30,000 गया, तो कितना बचा? तो देन बैलेंस इज हाउ मच? बैलेंस लिखना है या नेट लाइबिलिटी लिखना है, कितना है बैलेंस? तो इधर अगर नेट लाइबिलिटी लिखेंगे तो लास्ट में टोटल लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा. तो इधर मैंने बैलेंस ही लिखा. तो कितना होता है ये, कितना बचा ये पूरा करके? 88,000. Then we have 2,000. Then we have 10,000. इसका कुछ बैलेंस नहीं है. फिर we have 20,000. अब हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप ऐड. क्या ऐड करना है? फॉर्म अंडर राइटिंग. फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? फॉर्म अंडर राइटिंग है 10,000. दिया है क्वेश्चन में, गिवन है. फिर बी का कितना है? 8,000. एंड सी का कितना है? 6,000. फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना होता है? ऐड करो, ऐड करो, यू आर गेटिंग 24,000. फिर हमें इसको ऐड करने पे मिलेगा नेट लाइबिलिटी. मैंने क्या बोला था? जब हम लोग बेनिफिट नहीं देते फर्म अंडर राइटिंग का, तब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब ट्रीट करते फर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशंस को, दिस इज फर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशंस. ये 80,000 में इंक्लूडेड है, इसको हमने अनमार्क्ड ट्रीट किया. तो लास्ट में अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं, तो लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करते हैं. मार्क्ड ट्रीट करते हैं तो पहले लेस करते हैं, फिर लास्ट में ऐड करते हैं. तो यहाँ पे 8,000 प्लस 10 इज इक्वल टू 18,000. इतना शेयर्स खरीदना ही है. फर्म अंडर राइटिंग कितना भी पब्लिक को शेयर सेल कर दो, फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स खरीदना ही है. इधर आ जाता है 6,000. तो इधर आ जाता है 10,000 और पूरा ऐड करेंगे तो 44,000. तो इतना नेट लाइबिलिटी है. ए को 18,000 खरीदना है, खुद से डिवॉल्व हुआ है उसके ऊपर. बी को 10,000, सी को 6,000. इवन जितना उसका ग्रॉस लाइबिलिटी था उतना उसने पूरा सेल कर दिया. फिर भी फॉर्म अंडर राइटिंग है, तो आप जितना आपका लाइबिलिटी आप उतना करते हो, तो भी आपको कंपलसरी फॉर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स खरीदने पड़ते. तो 6,000 आपका फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स था, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा इन एनी केस. सो और ये कंपनी का लाइबिलिटी इतना है, टोटल हो जाता है 44,000. So with this sum is also done. Thank you very much everyone.